سوچ رہے ہو کہ سارے کہ رات کو 1 بجے لائیو آ گئے. فون میں تو اٹھا دے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی کوئی نہیں خیر. میں ابھی وہ لائیو دیکھ رہا تھا ان کی پروفیسر کے لائیو کے اندر جو ہے وہ مریم سلمہ کی لائیو میں. سلمہ کی لائیو میں. ہاں سلمہ کی لائیو میں سلمہ کا یار پروفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ مریم فہد کو انہوں نے لائیو لیا. ساتھ کو ایک چاچی آنٹی بٹھائی ہوئی تھی اور وہ آنٹی بھی اپنا منجن چورن بیچ رہی تھی اور پھر مریم فہد سے سوال و جواب کر رہے تھے اور یہ سارے جو گرگے شرگے بدماش سارے اکٹھے ہو کے اور یہ مریم فہد کو جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہماری چھوٹی سی وہ پیاری سی بہن ہے اور اس کو جو ہے نا معصوم سی بچی کو یہ گھیر کے اور یہ اس کے ساتھ یہ اپنا ایکشن بازیاں کر رہے تھے اور پھر بدتمیزی بھی اس کے ساتھ کی ہے. بے شرم لوگوں کا گروہ ہے, اتنے گھٹیا لوگ, اتنے جیلس لوگ. اصل میں صرف اور صرف سلمہ یاسین کو تو میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اس جیسی کمینی عورتوں سے پہلے بھی ہمارا واسطہ پڑ چکا ہے. یہ انتہائی گری ہوئی اور گھٹیا عورت ہے. یہ کسی حد تک جا سکتی ہے خود کو سچا اب ثابت ہو کرنے کے سکتا لیے. ہے اب یہ کسی حد تک بھی جائے گی. اور اصل سین کیا ہے؟ اصل سین یہ ہے کہ اب وہ انہوں نے سوچا تھا بیٹھ جائے گی ستارہ اور ڈاؤن ہو جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا اور ان کا کچھ, لیکن ستارہ یاسین جو ہے اس نے وہ دبئی چلی گئی. وہ اپنے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور وہاں اپنی پہ فیملی کے ساتھ جا رہی ہے, کیوں نہ جائے بھائی. ہاں وہ اپنا گھوم پھر رہی ہے, وہ لوگ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ جناب جو ہے نا ان کو کوئی ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. ابھی بھی ہم لوگ لائیو دیکھ رہے تھے, کافی سارے لوگوں کی صرف لائیو یہ دیکھی ہیں. ہاں سلمہ کی لائیو میں بہت بدماشی ہو رہی ہے, بہت غلط لوگ ہیں. ابھی صرف انٹرپٹ جو ہے نا یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے, جیسے انہوں نے اس کا کشمیر وزٹ خراب کیا تھا تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اب کسی بھی طریقے آپ ان کتے بلوں کو جو ہے نا وہ کتا بلا ہی سمجھیں اور کتے بلوں کا کام ہے بھونکنا. ابھی مجھے ہنسی آئی پروفیسر کی بات کے اوپر. مریم فہد کو کہہ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے حق کے لیے بات کرتا ہے, ہم آپ کو اگر ثبوت دکھا دیں تو فلاں کر دیں اور ڈھین کر دیں. اور پھر ایک اور محترمہ تھی, وہ کہتی ہمارے پاس ثبوت ہیں اور وہ ہم مریم فہد اگر آپ کو دکھا دیں تو آپ ویڈیو بنائیں گی. ان کا پورا جو زور ہے نا وہ ویڈیو بنانے کے اوپر ہے صرف کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں گی ستارہ کے خلاف. صرف ڈالرز کی گیم چل رہی ہے. اچھا یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں گی. اچھا اتنے ہی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات, ہم زیادہ لمبی لائیو نہیں کریں گے, چھوٹی سی لائیو کرتا ہوں اور میں بند کر دوں گا تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. وہ بھی پھر ساجد لائیو آیا ہے آج اور ادھر سے دلبر اور وہ اس کا بھائی جو دوسرا بابر, انہوں نے بھی آ کے اب تو ان کو منہ توڑ جواب دینے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. تو میں ابھی صرف یہ بات کروں گا کہ ان کا جو کیا بات میں دماغ سے نکل گیا بات کرتے کرتے. لائیو میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جب یہ کمنٹس وغیرہ کے اوپر نظر ڈالتا ہے نا تو پھر بندہ جو بات ہوتی ہے نا اصل وہ ذہن سے نکل جاتی ہے اور بندہ دوسری طرف چل پڑتا ہے. تو اس لیے میں ویڈیوز بنا کے نا میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا اس ٹاپک پہ بات کرنی تو ویڈیوز بنا کے کرنی ہے. پتہ ہے میں نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں, رئیس چچا ان کے بہت اچھے ہیں. آج وہ کہہ رہے تھے کہ سلمہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کروڑوں کی اس کی کوٹھی کھڑی ہے یہاں پر اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں بحریہ میں اس کے پلاٹس ہیں, یہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے لوگ ہیں. یہ جو رئیس اس کا شوہر ہے اصغر صاحب, اچگر صاحب, یہ ٹھیک ٹھاک کماتا ہے, کوئی کمی نہیں ہے اس کو یہاں پر ویڈیوز بنا کے. یہ جسٹ اپنی بہن کو گرانے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے, اس کو پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا فل پلان ہے, فل گیم ہے اور یہ دونوں میاں بیوی ایک ہے. آج زاہد بھائی نے بول دیا اور ہم فرسٹ ڈے سے یہ بول رہے ہیں. ہاں یہ دونوں میاں بیوی ہم تو فرسٹ ڈے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک ہی ہیں اور یہ پلان ان کا تھا. اور انہوں کا جو پلان ہے یہ شروع ہی اس وقت ہوا تھا جس وقت یہ انہوں نے اس کو ستارہ کو بلوایا تھا. انہوں نے ستارہ کو بلوایا تھا سعودی عرب, دونوں میاں بیوی نے پری پلان اور پری پلان اس نے اصغر نے اس کے نمبروں پہ واٹس ایپ میسج بھی کیے, بلکہ دونوں میاں بیوی نے سلمہ نے اور اصغر نے مل کر کیے اور یہ وہاں پہ اس کو تیار کرتی رہی, کوشش کرتی رہی. بہن ہے, سگی بہن تو کچھ بھی کر سکتی ہے, تو یہ پوری کوشش کرتی رہی. نینا کی بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی رکھی کہ کسی بھی طریقے سے ستارہ کی کوئی ایسی ویڈیو جو اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم کر سکیں, ایسی ویڈیو کوئی ہمارے ہاتھ آ جائے جس سے ہم بعد میں ستارہ کو گرا سکیں, ستارہ کو قدموں پہ لا سکیں.
पूरा प्री प्लान इन दोनों मियाँ बीवी ने किया था। उसके अंदर जो है वो नैना भी शामिल है और उसमें ये जो दूसरा थथला भी शामिल है। थोड़े से पैसों पे नैना और थथले जैसों को खरीद के तो ये काम करना, क्योंकि पैसा है इन लोगों के पास, तो ये सारा काम इन्होंने डाला है। अब ये कोई जो कुछ भी नहीं कर सके ये अब तक, हाँ। कुछ भी नहीं है इनके पास, सब कुछ फेक हो सकता है, ये चैट बाकी मरियम फाद से मैं कहूंगा, मैं तो मरियम फाद की वजह से आया हूँ कि आज मुझे जब उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे ना, हाँ, मुझे बहुत गुस्सा sister- आया इस बात पे। सिस्टर आप इन घटिया लोगों की लाइफ में न जाया करें, लानत भेजो आप इनके ऊपर। मासूम सी हैं वो, और आपका काम नहीं है इन कुत्ते बिल्लों के साथ भिड़ना। इस ऐसी लाइफ के अंदर जाहिद खान जैसों का काम है। और मैं कोई तरीका भी देख रहा था कि मंसूर stream मुझे यार कह रहे थे से- मैं कैसे लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं जाके इनको हाँ, बुलाता हूँ। मुझे ये तरीका नहीं आ रहा कि लाइव कैसे मैंने ज्वाइन करनी है। मुझे तो खैर ये लेंगे भी नहीं, मैं इनको बताऊं कि जवाब दूं, ये कानूनी बातें बैठ के करते हैं, कानूनी बातें मैं इनको जवाब दूं कानूनी। और जिस तरीके से ये प्रोफेसर बैठ के हंसता है, इसकी घटिया आदमी को मैं बताऊंगा कि भी लाइव के अंदर क्या, इसको ओरिजिनल लाइव मिलूंगा मैं इसको बहुत जल्द प्रोफेसर को इंशाल्लाह। अब जनाब सलमा मैडम अपने हाँ। प्रोफेसर साहब को जनाब सच्चा साबित करने एक के दिन लिए एक कुछ भी बकवास बोल रहे कल हैं। आइए, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। कल आइए, मेरी आखिरी वीडियो में ब्लॉगिंग करूंगी। व्हाट आज- इज ये लाइव क्यों है, और किस आज लिए? फिर लाइव आके वो प्रोफेसर ब्लॉग था, ब्लॉग से खुल हाँ, गया, ब्लॉग से खत्म हो गया सारा। ड्रामेबाजियां लोगों को ये करते हैं, बेगैरत लोगों का ये गिरोह है। अभी साजिद अल्लाह भाई मेरा अपनी माफ लाइफ कर में दे। कह रहे थे, कहते हैं कि इतना नमक हराम आदमी है ये जो प्रोफेसर है, हाँ। इनके घरों में घुस के खाने खाता रहा, दस्तरखान उनके साथ शेयर करता रहा और इतनी बड़ी बेगैरती बकवास करता बाबर रहा। कहते हैं खानपुर से आता था, इसको लेने के लिए भी हम पिक एंड ड्रॉप भी हम देते और थे, सलमा तो को खिलाते शर्म भी आनी नहीं चाहिए इसको है। अपनी लाइफ में बिठाते हुए। इस कुत्ते ने, इस घटिया इंसान ने सलमा तुम्हारे घर की किसी बच्ची को नहीं छोड़ा इसने। लेकिन हमें शर्म आती है, लेकिन- तुम्हें नहीं आती? लेकिन हमें पता है कि सलमा तू किस नस्ल की है। तू ऐसी औरत है ना कि तू अल्लाह जिस माफ करे, नस्ल मैं की है ना, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी औरत नहीं तो देखी। जिस नस्ल की है ना, तेरे नस्ल की घटिया औरतें यही काम करती हैं। तू बहु वजी कुत्ती औरत है, तू जेड़े बेल्ट दी हैं, तू बड़ी भैंड याक औरत तू है। कुछ भी कर सकती तू है, कुछ भी ये मैं तुझे करेगी, बता दूं। तू तू जितनी कुछ भी घटिया औरत है करेगी, ना, तेरी नस्ल से, तेरे खानदान से, तेरे जैसी औरतों से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जिस बेल्ट के अंदर, जिस बेल्ट की जिस तू है, नस्ल से ये है, इस बेल्ट के बेल्ट में भी अच्छे लोग होंगे। इस बेल्ट ये तो में बहुत अच्छा- ही घटिया इस घटिया औरत बेल्ट है। में इस किस्म की जो औरतें हैं ना, वो आम पाई जाती हैं, बहुत आम है। तो तू ये औरत अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी करेगी, अपनी बेटी तक पेश करेगी। मैं आपको बता ये रहा हूँ, अपनी इतनी बेटी कमी के है। ऊपर भी इस तरह की बात करने से गुरेज नहीं करेगी। ये इतनी बड़ी बेगैरत औरत है, इसके आगे 3 बेटियां, इसको शर्म नहीं आती। सबके घर में बेटी है, हम भी बेटियों वाले, हमें शर्म आ जाती जिस तरह ये इस तरह की बकवास कर रही होती है। हमें यकीन करो, मैं वो लफ्ज सुनना भी नहीं चाहती। आज मैं इसकी लाइफ में गई हूँ थोड़ी सी देर के लिए और मैं वापस आ गई हूँ, मुझसे सुना ही नहीं गया। मेरे तो कानों से धुएं निकलते हैं जिस किस्म की ये बकवास बोलती है। मैं एक औरत होकर नहीं सुन सकती इस तरह की बात। यकीन करें, मेरा दिल ऐसे रोने को आया। मैंने कहा भी चलते वो हैं एक मलिक और- की इंसान के गंदी औरत है। एक और- तू चीज क्या है घटिया औरत? दो मैं टके- तुझे कहती हूँ मैं औरत हूँ ना, तू चीज क्या है? 2 टके की गश्ती। मैं कहती हूँ तुझे कि तू औरत के नाम पे धब्बा है, अल्लाह तुझे बेटी भी ना देता। तू इतनी बड़ी बेगैरत औरत है, मरियम तेरी फाद, मासूम सी बहन है, तुझसे सिर्फ उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं अब होगी। मरियम फाद का क्या तेरे साथ मुकाबला है? मरियम फाद को जानती भी है तू 2 टके की औरत है। मरियम फाद एक उसको तू इज्जतदार- सबूत दे रही है, तू तस्वीरें, तू चैट, लानत तुम्हारी चैट तस्वीरों के ऊपर। मरियम फाद एक इज्जतदार घर की औरत है, एक इज्जतदार शोहर की बीवी है, वो घटिया एक औरत। खानदानी लोग हैं। तू एक कमीन, तू एक घटिया। 4 पैसे आने से शोहर- इंसान अच्छा नहीं। शोहर भी तेरा घटिया तुम्हारा है, जो तू भी 4 घटिया है। पैसे आने से कहते हैं ना, कंजरों के पास ही पैसा है। तुम कंजरों से भी बढ़कर हो। कंजर तो अच्छे होते हैं, इतने तुम बेगैरत इतने नहीं बेगैरत होते, लोग हो ना। कंजर मैं नहीं है। आज मैं नहीं बोलती, हमेशा मंसूर बात करते मैं हैं तो topic शुरू पे से आके। कहता हूँ ये बेगैरत मैं होते सिर्फ हैं। यकीन मुझे करो, पता मैं है आज इनका। मैं इतनी गुस्से में आ गई हूँ ना। मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ। ये औरत है कि तू पागल औरत है? तू पागल नहीं, खुदा का खौफ कर, घटिया। अल्लाह का खौफ कर। खुदा तुझे हिदायत दे, घर में बैठ, अपने बच्चे संभाल। पता नहीं 5वां 6वां बच्चा तेरे पहले पास है। तेरा मौलवी यार निकल के आ कमाल गया, हो तूने गई। वो लगाया हुआ था, फिर पिंक नाइटी निकल तुम्हारी के आ भी गई, माजी है, ये फिर सलमा पिंक मैडम नाइट माजी फिर तेरा भी फिर है। पिंक नाइटी निकल के आ गई, फिर अब ये प्रोफेसर के साथ तेरी यारियां चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तू किस किस की जुबान रोकेगी? अपने किस ऊपर किस गंद की? उछलता है। तू खुद उल्लू के वहाँ पट्टों वहाँ समझो इस बात को। वहाँ पे तेरा कारोबार है औरतों के चड्डे साफ करना, चड्डे हद हो साफ कर गई। करके लोगों के गंद साफ कर करके गंद साफ करने वाले मंसूर, की इसको मुंह से जरूरत जिंदगी नहीं है, निकलनी सिर्फ इनको लालच है पैसे का। हाँ, लालच है ना। ये सिर्फ तुम लोगों का हिर्स है। कहते हैं ना, तुम्हारे पेट नहीं भरने, कब्र में तक हाँ। नहीं भरने तुम्हारे पेट। अल्लाह ताला ने तुझे बहुत दिया हुआ है, पता है हमें सारा। तुम्हारे अपने खानदान वाले तुम्हारे खिलाफ भौंक रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात की? लाना तो तेरे ऊपर, मेरी तरफ से तुम 1000 बार लाना तो तेरे चलो हम आए थे इनको लानतें देने के लिए। बहुत मुझे शुक्रिया। आज मैं सलमा एकदम पे अलग इतना गुस्सा है। कल आके जनाब ये पासपोर्ट, ये प्लान टमकान, पहले फट गया पासपोर्ट, पहले कागज फट गए,
पहले शौहर अगर ऐसी बता तो शौहर को घर से निकालना सुलह की हुई है, अच्छी तरह जानते हैं हम तुम सबको, इन सब की सुलह है, ये आपस में एक है मियां बीवी, हाँ, इकट्ठे बैठ के एक बेड पे ये प्लान करते हैं कि अगला हमने सुबह क्या तमाशा निकाला। हाँ, जल्दी से निकाल। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर वो छोटी बहन तेरी अगर 4 पैसे लाना से दे दिया अपने बच्चों को स्टेबल कर रही है, तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। देगा देगा, तू ऐसे पढ़ती रहे। और हम सितारा के ऐसे साथ है, अब जल-जल मैं के आऊंगी चलेगी। और मैं आके भी तुझे जवाब दूंगी। हाँ। उल्लू की पट्टी समझती क्या है अपने आप को? ये इसको जानते नहीं मुझे तुम। मैं आज घोर गुस्से में हूँ, यकीन ऐसी करें। बात नहीं है। अभी हाँ, मैं मेरे कसम से से पूछो। हाँ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ मैं किसी के बारे में आके इतना बुरा भला बोलूं। हाँ। मुझे इतना यकीन करें, मैं फिर भी कहती थी कि नहीं आप किसी के बारे में गलत ना बोले, आप कुछ तो इंसान के अंदर हया होती है ना, तुझ औरत में तो हया ही नहीं है। पता नहीं तूने जिंदगी कैसे गुजारती है, मैं तो इनको हैरान कुछ हूँ। कहने का फायदा नहीं है। इस मंसूर बेल्ट में इसके की- ब्लॉग देखती थी, इस बेल्ट की औरतें और इस बेल्ट में सारी औरतें नहीं, इस बेल्ट में ऐसी चंद औरतें मौजूद हैं, ये ऐसी कमीनी औरतें जब मौजूद इससे हैं। लगती है ना इनको, ये उसकी ऐसी- इज्जत पे बात करते हाँ, हैं। जब ये इनकी इनको अपनी लगी है सिर्फ और सिर्फ इन- इसको सितारा से हाँ, लगी है जब बस। जिस इनकी आदत है, इनकी एक माइंड सेट है, इनकी एक नेचर है, इन औरतों की, इनकी जब किसी से लगती है ना, तो ये उसकी जब उसका मुकाबला नहीं कर पाते जी। ना, तो फिर उसकी जात के ऊपर बात करते हैं, उसके खिलाफ सबूत की रेड करने की जी कोशिश ये करते हैं कुछ भी करते और हैं, उसको बदनाम करने ये की अपने कोशिश फोन करते से हैं। मैसेज करके भी हाँ, फेक ये- मैसेज बनाकर भी जलील करते हाँ, हैं। ये प्री ऐसे लोग देखे हैं हमने, हमने ये धूप में मेरे बाल अभी ये- ड्राई लगा हुआ है, ये हमारी उम्र हो गई है, देख चुके हैं हाँ, इस तरह की हरकतें ये लोगों प्री की। प्लान हमने करते ही ऐसी औरतों को ये चीजें प्री प्लान करते हैं, हम शर्म देख नहीं चुके आती, हैं, बगैर हमारा लोग- अपना वास्ता पड़ चुका है इनके हद हो साथ। गई यार, हद तो कर दी ये इस औरत सलमा ने, तो उसी हद कर नस्ल दी। की औरत है, ये इनके लिए ये सबूत क्रिएट करना, बनाना, झूठ बनाना, फ्रॉड करना, ड्रील करना, ये एक मामूली सी बात है। पता है तू अपने पूरे खानदान को बदनाम कर गई है, टके की तुम्हारी इज्जत नहीं रही कहीं पर भी, चाहे वो सोशल मीडिया चलता है तुम्हारा खानदान हो, चाहे ये पूरा पाकिस्तान हो, हाँ। दुनिया में तुम लोग जलील हो गए हो। अभी- लेकिन अभी भी तू बैठ के लाइव में कह रही है कि मरियम फहद में तुम्हें सबूत दूं तो तुम वीडियो मेरे हक में बनाओगी, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। हक में सिर्फ तुझे वीडियो एक वीडियो चाहिए बस, हाँ। कि तेरी गुड्डी उड़े और सितारों को मैं डिफेम करूं, तू ऐसा जो होने नहीं मर्जी देंगे। हो जाएगी, तू पकोड़े के नाक वाली, तुझे ऐसा नहीं famous होने देंगे होना। और ऐसा नहीं और होगा। मैं हैरान होता हूँ सितारा बहुत इनोसेंट है, और सितारा जो की शक्ल और बताती मैं है। हैरान होता हूँ जो कंजर लोग तेरे उसमें लाइव के अंदर जो तेरे हक में कमेंट्स कर रहे होते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे कंजर लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कमाल है। मैंने तो नहीं, बस यकीन तेरे जैसे ही करो। लोग होंगे ना, वो भी जो तेरा साथ दे रहे हैं, जो वो तेरे सारे जैसे एक लोग जैसे हैं। हैं मुझसे, सब एक हाँ, जैसे हैं। सारे कमीना वो जो और विलेज इनसाइडर से पता है इज्जत क्या होती है। हाँ। अपनी बीवी तेरी घर में रो रही है, तू बैठ के तू सलमा की उधर ये लाइव में आके तू 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के वहां पे औरतों के तमाशे देख रहा है, डूब के मर जा बेगैरत इंसान। हाँ, ये मर्द है, मर्द के नाम पे भी तू खुश रहा है, तू मुझसे सुना जाके कहीं गली में मेकअप करके दाढ़ी साफ कर, मुझे साफ कर, मेकअप कर और जाके खुसरा बंदी कमा, ये तो ना करी बाइट पे खड़ा हो। बाल्टी के ऊपर विलेज बेगैरत नाम रख इंसान। रखा, विलेज साइडर, और 24 घंटे बैठ के इधर से मुड़ता है तो सितारा, उधर से मुड़ता है तो सितारा, इधर से मुड़ता है सितारा तो इधर से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये हाफिज़। बहन नहीं है, ये अल्लाह ताला वो कह रहे हैं कैसे ऐसी बहन किसी को ना दे, ये बहन नहीं है, डैन है। डैने डैन भी साथ घर छोड़ देती ओहो, है, डैने भी अच्छी डाइन होगी। भी साथ घर छोड़ डैने देती भी है, ये तो अच्छी वो बड़ी होगी। कोई कमी नहीं औरत है। मैं डायने भी अच्छी होगी। ये इस किस्म की 5वीं डायन हम देख रहे हैं, सलमा टाइप की, इसलिए हमें पता है। पता है हम लोग देख चुके हैं, हमारे भी जिंदगी में बहुत से मसाइल, बहुत सी औरतें देखी हैं हम मैंने इस भी। सलमा जैसी 5वीं डायन देख रहे हैं, और ये अपने भाइयों को भी खा जाती हैं, ये अपने बच्चों को भी खा जाती है, किसी की भी नहीं होती। सिर्फ इसको अपनी बहन से लगी है, इसने हाँ। पैसा मांगा है उससे, उसने इसको पैसा, उसके पास इतनी भी वो उम्मीदें हैं हाँ, यार। बस उसने थोड़ा पैसा बहुत नहीं अगर वो दिया। अर्न कर रही है क्यों अपने बच्चों देती, की, क्यों देती? आजकल 1000 रुपए को नहीं देता, वो तुझे करोड़ रुपए दे देती। कैसे रोड कोई पे- देगा यार, कमाल हाँ, कोई है, अब उसके उसके अपने पास बच्चे नहीं है। अब उसके पास पैसा आना शुरू किया तो कमा कमा के तेरी मंसूर गश्ती को चाचू देती इनके रहे। आज बोल पड़े हैं, जो सलमा को बेटी बेटी कहते थे, हाँ। आज चाचा रईस ने आके बोला कि तू कर क्या रही है, तूने तो हमें टके करने छोड़ा, तुम तो अपने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का भी तुम लोग लिहाज नहीं और करते, वो तो यही औरत है। प्रोफेसर वो सफेद दाढ़ी वाले को, मुझे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो के अंदर गालियां दी थी इस प्रोफेसर को, वो सफेद दाढ़ी वाले चचा के ऊपर बकवासें कर रहा था। हमने उनसे ऐसे- मुझे चाचा वो इतने रईस अब मैं लगते हैं वो, मैं हैरान हूँ कि हम इनके रिश्तेदार, इनके चचा, हम इनके नहीं हैं आपके रिश्तेदार मतलब कोई। नहीं, मतलब हम इनके रिश्तेदारों को जो देखते हैं हम अच्छे लोग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उस चचा की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी मैं पूरी वीडियो देखता हूँ दिल भर हो बाबा ताकि वो उसको सब। ताकि उसको सपोर्ट भी हो जाए और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो इनके साथ खाते उठते बैठते प्रोफेसर जैसे बंदे हैं, जो इनके घर खा के दब के इनके नाम के ऊपर कमा के खा रहे हैं, चैनल भी इनके नाम पे चल रहा है और बैठ के बकवास कर रहे हैं। यार इतना लानत है बेकार तुम है। सब के ऊपर, बस चलिए मैं जी, तो बहुत मुझे तो आज शुक्रिया। इतना कोई समझ अल्लाह से बाहर हाफिज। है। हम लाइव आने का मकसद सिर्फ लानते देने के लिए हम आए थे। हाँ। इनकी लाइव के ऊपर हम मरियम फाद को थोड़ा सा सपोर्ट मेरी वो बेटियों की तरह है मरियम फाद, चाहे वो नौशीन हो, मेरी बेटियों बहनों जैसी है।
यकीन करें वो कभी नहीं कहती कि ये सही वो गलत, वो कहती है ये सब तमाशा वाईटी पे ना लेकर आओ। यही मकसद है। और खुदा का वास्ता बंद कर दो ये बकवास। बंद कैसे करेंगे इसे? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या जल्दी आपको? वो शोर में जा रहा है, मिलकर देखने के लिए कौन जा रहा करते? बर्ड? है। हाँ नहीं वो खाना डाल रहा है अभी। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं शोर वो मचा खाना रहा है। डाल रहे हैं उनको। मैं देखने चला गया था, मैंने कहा कोई बिल्ली बिल्ली ना आ गई हो या कोई इस तरह इसलिए। सितारा लाइव है, मरियम की लाइव में इस टाइम सब दिल मिला गए हैं। मैं अभी इस टाइम लाइव कभी भी ना आती, मैं सो रही होती हूँ। मैंने सिर्फ अभी जस्ट सलमा की लाइव जाके खोली है, मुझे पता लगा है सितारा लाइव आई हुई थी दुबई से। मुझे पता चला है कि जो सलमा है उसकी लाइव में मरियम पहुंची हुई है। जस्ट मैं मरियम की खातिर से सलमा की लाइव में गई हूँ। मैंने कहा मरियम की वहां पे क्या बात हो रही है, मैं सुनना चाहती अच्छा हूँ। मैं हैरान वहां हूँ। पर मरियम को बहुत इंसल्ट किया गया है। अच्छा मैं क्योंकि ये घटिया औरत है, किसी को इज्जत दे नहीं सकती अच्छा है। मैं हैरान हूँ, उसके जो इनके जो सपोर्टर्स है ना, उनमें भी कुछ कमेंट्स मरियम के ऊपर कर रहे थे। मतलब मैं हैरान हूँ कि यार तुम क्या लोग हो। तुम वो मरियम अगर उसकी सारा की साइड ले रही है, वो एक खानदानी पठान उसका शोहर है, वो इज्जतदार खानदानी शोहर है और बहुत लोग बड़ा हैं, तुम्हारी तरह घटिया बहुत नहीं बड़ा है। ऑफिसर है। तुम्हारे जैसे दो दो टके के लोग यहाँ पे आके उसको कमेंट करके गलत गलत बातें कर रहे हो, तो शर्म तुम नहीं आती। क्या इमेज दे रहे हो पाकिस्तान का? तुम पाकिस्तानी हो, तुम तो कोई पता नहीं अपने मुल्क का नाम तुमने बदनाम कर दिया, तुम्हारे इस्लाम जैसे को लोग, तुमने बदनाम तुम्हारे कर दिया। जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान भी बदनाम है। हम तुम्हारे भी जैसे सुनते हैं लोगों अजीब के अजीब नाम। बातें। तुम इतने घटिया किस्म के लोग हो, तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ना तुम्हारे पास कोई सबूत है, ना तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। अल्लाह ना तुम्हें कुरान मजीद का लिहाज है, लाज है। मंसूर अल्लाह ताला कुरान मजीद में मैं कहता है कि आपको तुम बताऊं? दूसरों की पर्दा पोशी करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, और तुम उसको उछाल रहे हो। अगर और कोई तुम मदीना में बैठ के और हरकतें कर उछाल रही रहे है, हो, तुझे तो मदीना वाला पूछेगा। और एक चीज मामला इनके पल्ले है ही कुछ नहीं, फिर आके शोर मचाते हैं, फिर आके लाइवें बना रहे हैं। सारी की जाहिल औरत। सारा का सारा टॉपिक इनका क्या है? सारा का सारा टॉपिक इनका ये है सारा यासीन को जानी साबित करें। हाँ। सारा यासीन किसी तरीके से गिर जाए, उसका चैनल बंद हो जाए। और सारा साजिद के ऊपर जाके कमेंट्स कर रहे थे, अगर साजिद ने अपनी बीवी का साथ दे दिया तो उसको नीचे और साजिद भाई बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ये घटिया कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही, जेलसी है, जेलसी। साजिद को जाके घटिया घटिया कुछ कमेंट्स कर रहे थे। मैं साजिद की भी लाइव देख रहा था, उसके अंदर तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैं मतलब यही वक्त होता है मुश्किल का, जब मियाँ बीवी का पता चलता है एक दूसरे से वफा, ठीक है ना। आप ऐसे किसी को आप कुछ कमेंट देखे तो जानी औरत के साथ रह के कैसा फील कर रहा है। मैंने ये कमेंट पढ़ा, मुझे इतनी अफसोस हुआ। मैंने कहा यार तुमने देखा क्या है? तुम जानी का इल्जाम लगा रहे हो किसी के ऊपर बैठ के। नहीं देखा ना, हमने तुम्हारे देखा, ऊपर खुद सलमा ने नहीं देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारे पास एज इस्लामिक रूल तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। और कुरान मजीद में है कि जो पाकीज़ा औरतों के ऊपर इल्जाम लगाए और साबित ना कर सके उसको 80 कोड़े मारने की इस सजा दुनिया है। में भी तुम खत्म, आखिरत में भी खत्म। तुम जितने बैठे हो, तुम इस्लामिक रूल से तुम बैठ के इस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम बदनाम कर रहे हो। तुम इस्लामिक रूल से भी देखो ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे मुंह पे थूका भी जाए। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें 80 धुरे लगाए जाएं। तुम इस काबिल हो। ये डिपोर्ट होंगे दोनों मियां बीवी, इनको सुकून नहीं आ रहा। और ये मियां बीवी और तुम अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का और फ्यूचर खुद ये बर्बाद दोनों करोगे। मियां बीवी तो इंशाल्लाह डिपोर्ट होंगे ही होंगे। जो यहाँ पे चटट्टे कुत्ते बिल्ले 2-4 हैं ना, इनका भी बेड़ा गर्क होगा। मैं अभी जाहिद खान को देख रहा हूँ, कल मेरे ख्याल में 26 है और पेशी है अदालत के अंदर। इनके जब तक अगर इनके पास नोटिस जाते हैं, इसीलिए इनको आग लगी हुई है। इनके पास नोटिस इंशाल्लाह जाने वाले हैं। वाइट पेन साहब चाहिए, इनके पास नोटिस जाते हैं तो बस फिर इंशाल्लाह काम इनका हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह कल आएंगे लाइव। चलें, अल्लाह हाफिज। कल गपशप करेंगे, आज सिर्फ हम लानते देने आए थे।